Yes, good morning students. Today we are going to start the new concept which is basics of kinematics. This is very important concept from 11th class point of view. So let us discuss mechanics. Mechanics, as we know, is a branch of physics in which we study the motion of material objects. फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम मटेरियल ऑब्जेक्ट्स की मोशन की स्टडी करते हैं. मोशन. Now, how motion is produced? This question arises in our brain. How motion is produced? If we have an object which is at rest, how we bring the object is in motion? By applying an unbalanced force on the object. उस पर unbalanced force लगाते हैं, हम उसे मोशन में लाते हैं. So unbalanced force is responsible for producing motion in the object. So mechanics is further classified into two categories. Kinematics and dynamics. Yes, apart from these two, there is one more branch which is statics, but that is not basically thoroughly in our syllabus. Now, kinematics, whose basic concepts we are going to discuss. अभी सीखा हमने motion. Motion is produced by unbalanced force. If any object is moving and you want to stop the motion in the object, you need to apply unbalanced force in a direction opposite to the motion of the object. आपको motion के opposite लगाना पड़ेगा force. अब काइनेमेटिक्स वो ब्रांच है जिसमें हम कोज क्या बताया आपको, अनबैलेंस्ड फोर्स कंसीडर नहीं करेंगे. तो द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी स्टडी मोशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स विदाउट टेकिंग द कोज विच प्रोड्यूसेस मोशन. विदाउट टेकिंग द कोज. And what is cause? अभी बताया आपको, अनबैलेंस्ड फोर्स. एंड डायनामिक्स बाय कंसीडरिंग द फोर्स. This part later on in unit 3, unit 4 we will discuss, but now we have to discuss concepts, basic concepts of this particular branch. Okay, so children, yes children, let us move to the basics. चलो फर्स्ट डेफिनेशन, रेस्ट. रेस्ट आप कब कहते हैं किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट पर? अब एक एग्जांपल ले लेते हैं. दिस इज ए ट्री and there is a person who is standing on the road. There is a person who is standing on the road and there is a tree. Tree क्या होगा इस पर्सन के लिए, रेस्ट पर और मोशन में? Obviously your answer would be at rest. Why? Because its position is not changing for the person. इसकी पोजीशन इस पर्सन के लिए चेंज नहीं हो रही है, इसलिए क्या कहेंगे, ट्री इज एट रेस्ट फॉर दिस पर्सन. तो किसी भी ऑब्जेक्ट को हम रेस्ट पर कब कहते हैं? जब उसकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज ना हो रही हो. तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ state of rest? An object is said to be in state of rest for an observer if its position is not changing with the time. Its position is not changing with the time. A motion. मोशन में कब कहते हैं? मोशन में किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में कब कहेंगे? When its position is changing with the time. In rest, position does not change with the time. But in motion, position changes with the time. For example, इसी एग्जाम्पल में मान लीजिए ये एक आपके साथ पास क्या है, सपोज अ बस. देयर इज अ बस which is moving towards the tree. moving towards the tree.
and there is a person inside the bus, what he will observe? Imagine कीजिए आप बस के अंदर हैं और बस ट्री की तरफ मूव कर रही है, तो आपको क्या लगेगा? You will observe that tree is moving towards you. आपको ऐसा लगेगा ट्री आपकी तरफ भागता हुआ आ रहा है. It means tree is in state of motion for the person who is inside the bus. क्योंकि पोजीशन ऑफ द ट्री इज चेंजिंग फॉर द पर्सन हु इज इनसाइड द बस. अब यहाँ पे क्वेश्चन आया, यही ट्री इसके लिए रेस्ट पर है और इसके लिए मोशन में. इसका मतलब रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स. रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स. कोई ऑब्जेक्ट किसी के लिए रेस्ट पर हो सकता है और वही ऑब्जेक्ट किसी दूसरे के लिए मोशन में हो सकता है. तो हम प्रिडिक्टली ये नहीं कह सकते कि ये रेस्ट पर है. ये डिपेंड करेगा कि आप किस ऑब्जर्वर के लिए पूछ रहे हैं. ऑब्जर्वर डिपेंडेंट है, स्टेट ऑफ मोशन. तो रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव. Okay students, this is very important concept. Rest and motion are relative. Let us move to the next basic terms. Now types of motion, let us discuss briefly. Yes, student, types of motion. Motion executed by an object can be simple and can be complex. Sometimes it's very complex motion, but it is easier to study complex motion when we are aware of the simple motion first. जब सिंपल मोशन की नॉलेज होगी तो कॉम्प्लेक्स को पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा. तो few types of motion we discuss. रेक्टिलिनियर मोशन है. ये कौन सी है? When any object which may be treated like a point mass is moving along a straight line. Is moving along a straight line. जब कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग मूव कर रहा होता है तब हम इस मोशन को कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन. बट मैंने यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट बताया आपको, इसको जब हम पॉइंट मास की तरह ट्रीट कर सकते हैं, पॉइंट मास की तरह, और पॉइंट मास की तरह कब ट्रीट कर सकते हैं, लेटर ऑन वी विल डिस्कस. When do we treat this object like a point mass? So basically, when a point mass object moves along a straight line, motion executed is called rectilinear motion. Clear, children? Now next type is circular motion. Circular motion is that motion in which a point mass object moves along the circumference of a circle. जब कोई ऑब्जेक्ट which is point mass again circumference of the circle के along move करता है, circle circular motion तब execute करता है. Examples: motion of the earth around the sun, motion of the satellites around the earth. These are the examples of circular motion. ऑसिलेटरी मोशन. ऑसिलेटरी मोशन हमने पढ़ा था 9th क्लास में साउंड लेवल चैप्टर में. ऑसिलेशंस वर्ड एक ऐसी मोशन होती है जब कोई पॉइंट मास ऑब्जेक्ट एक फिक्स्ड पॉइंट के टू एंड फ्रो मोशन एग्जीक्यूट करता है. उसके पास जाता है, उससे दूर जाता है, उसके पास जाता है, उसके दूर. और क्यों जाता है? इन 10th यूनिट वी विल डिस्कस thoroughly what is the oscillations. For example, we have spring mass system. This is a massless spring whose one end is connected to a rigid spot and the other end is connected to a block of mass. Now, if I pull the block from this end and apply a force in this direction, spring will be elongated,
स्प्रिंग की लेंथ बढ़ जाएगी, suppose this elongation is x. So at this moment, अभी मैंने पकड़ा हुआ ब्लॉक को, if I release the block, what will happen? Obviously, a restoring force will come and spring will start be compressed, and now this will start executing oscillatory motion. This type of motion is oscillatory. इस पोजीशन के अबाउट इसके पास जाएगा, इससे दूर जाएगा, टू एंड फ्रो मोशन. दिस इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन. Now we are going to discuss some basic terms which are very important. Distance. First word, distance or path length. Yes, remember distance. Distance or path length. अब हम मोशन की स्टडी कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, तो व्हाट इज डिस्टेंस और पाथ लेंथ? टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट. एक ऑब्जेक्ट है, वो पॉइंट ए से चला पॉइंट बी, सपोज 4 मीटर, यहां पर जाकर उसने राइट एंगल पर टर्न कर दिया, सपोज 3 मीटर. कितना डिस्टेंस, तो टोटल पाथ कितना ट्रेवल किया? 4 + 3, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 7. अब बता दो पाथ लेंथ क्या है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट which is how much? 4 + 3 7. It has only numerical value, बस इसके numerical value, कोई डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, it has only तो दिस इज ए स्केलर. 9th में पढ़ा था physical quantities which have only magnitude, only numerical value, they are called scalar. Displacement. Shortest path between initial and final position of the object during its journey. इसकी जर्नी के दौरान फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. जर्नी कहां से स्टार्ट की थी? फ्रॉम ए. कहां पे फिनिश की? सी पर. तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा? ऑब्वियसली दिस वन, or this one, this curved path. Not at all. This straight path. We know. छोटी क्लास में पढ़ा था, shortest distance between 2 points is a straight line path, straight line segment. So this will be the shortest path. It means this is the preferred direction. So this will be my displacement. अब इसको हम पाइथागोरस थ्योरम से कैलकुलेट कर सकते हैं. Easily it comes out to be 5. But in which direction? In this direction. So displacement is direction. Direction from where to where? From initial point to final point. Starting point to ending point of the journey. तो मुझे इस एक प्रेफर्ड डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, वो मुझे डिस्प्लेसमेंट देगा. तो इट इज डायरेक्शन, इट मींस इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी. इट मींस इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी. तो डिस्टेंस इज ए स्केलर एंड डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी. क्लियर? यस. अब यहां पर एक दिमाग में एक बात आती है, डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो. एक एग्जांपल लेते हैं. एक पर्सन है, वो अपने घर से चला मार्केट. घर और मार्केट के बीच डिस्टेंस है 40 मीटर. He goes to market from home and then returns from market to the home. टोटल कितना ट्रेवल किया उसने? पाथ लेंथ कितना हुआ? 40 + 40 80. But what will be the displacement? In this case, initial and final position are the same. जहां से चला था फाइनली वहीं पहुंच गया.
तो शॉर्टेस्ट पाथ तो वही हो गई नहीं, तो व्हाट विल बी डिस्प्लेसमेंट? जीरो। व्हाट विल बी डिस्प्लेसमेंट? जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो बट डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो। डिस्टेंस इज ऑलवेज greater than zero. Displacement can be zero, can be negative, can be positive. Children clear? So children, let us move to the next basic term, which is speed. Speed is very important physical quantity in order to study motion. अब एग्जांपल लेते हैं, दो बच्चों का एग्जांपल लेते हैं। एक बच्चा ए है, एक बच्चा बी है। Both go to school from their home and they live in the same home. दोनों एक घर में रहते हैं, ए और बी, भाई भाई हो सकते हैं। They go to the school. And school is 3 kilometer at a distance of 3 kilometer. School is at a distance of 3 kilometer. E goes to the school within half hour. A को लगता है 1 half hour और B को लगता है 1 hour. अब मोशन में तो दोनों ही हैं, दोनों मोशन एग्जीक्यूट किया, ट्रांसलेटरी मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन एग्जीक्यूट किया। बट यहां से हमें एक फिजिकल क्वांटिटी, कौन फास्ट चला, कौन जल्दी चला? ऑब्वियसली कौन जल्दी चलेगा? कौन चलेगा? आपके दिमाग में सही आ रहा है, कौन जल्दी चलेगा? जो जल्दी पहुंच गया होगा। कौन जल्दी पहुंचे? ए। इट मींस ए फास्ट चला होगा। तो हमें एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत पड़ी जो हमें ये बताए कि यूनिट टाइम में कौन ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, यूनिट टाइम में। तो वहां से हमारा कॉन्सेप्ट आया स्पीड। क्या कॉन्सेप्ट आया? स्पीड। छोटे क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड को हम कैसे कैलकुलेट कर लेते हैं? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं कि स्पीड, हाउ मच डिस्टेंस, 3 टाइम हाफ, 6 किलोमीटर पर आवर स्पीड ही वाज मूविंग एंड बी ऑब्वियसली 3 किलोमीटर पर आवर। तो ए की स्पीड बी से इसका डबल थी, तभी तो टाइम क्या लगा? हाफ, टाइम हाफ हो गया। क्लियर दिस कॉन्सेप्ट? ठीक है चिल्ड्रन। स्पीड, अब स्पीड का कॉन्सेप्ट और अच्छी तरीके से, स्पीड के कॉन्सेप्ट को हम और अच्छे तरीके प्रॉपर्ली बन जाता है अगर हम स्पीड में डायरेक्शन भी ऐड करते हैं। मोशन को समझना और बढ़िया हो जाएगा। इट विल बी वेरी बेटर टू अंडरस्टैंड द मोशन इफ वी ऐड डायरेक्शन विद द स्पीड। बट जब इसमें कुछ ऐड कर दिया हमने डायरेक्शन, अब मैं ये बता रहा हूं A is moving with a speed of 6 km per hour. In which direction? In this direction. Now direction I have mentioned. तब एक नई फिजिकल क्वांटिटी बन जाती है, which is velocity. Which is velocity. Velocity is what? Speed plus direction. तो velocity में चेंज करना है आपको, तो आप चाहे स्पीड में चेंज कर दो, चाहे डायरेक्शन में चेंज कर दो, क्योंकि velocity दोनों में डिपेंड है। velocity दोनों में डिपेंड है। तो चाहे आप स्पीड चेंज कर दो और चाहे आप उसकी डायरेक्शन चेंज कर दो, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? चेंज। वेलोसिटी क्या हो जाएगी? चेंज। एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। We have a vehicle which is initially at rest. आपके पास एक व्हीकल है जो रेस्ट पर। आप क्या करते हो स्टार्ट करने के लिए? उसको किक करते हो, एक्सेलरेटर दबाते हो, रिस्क छोड़ते हो, स्टार्ट हो जाता है। इट मींस इट इज गेनिंग द स्पीड, स्पीड बढ़ रही है, स्पीड इज चेंजिंग, इट मींस वेलोसिटी इज चेंजिंग, वेलोसिटी इज चेंजिंग। आपने स्पीड एक्वायर कर ली है। सपोज अब आपकी स्पीड हो रही है 18 किलोमीटर पर आवर। आपने देखा आगे टर्न है, आपने स्पीड को चेंज नहीं किया और आपने डायरेक्शन को चेंज किया। आपको डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी, टर्न लेना पड़ेगा। This time you change the direction. Again velocity will be changed because velocity can be changed by changing either speed or direction.
changing speed or direction. Got it? Velocity, because it has direction, is a vector quantity. Is a vector quantity. Now the last term, which is very basic term, acceleration. आपने सुना होगा ड्राइविंग करने का एक्सेलरेटर दबाओ, वो कब कहते हैं? जब आपको स्पीड बढ़ानी हो या स्पीड घटानी हो, यूजुअली स्पीड बढ़ाने में कहते हैं एक्सेलरेटर को और तेज करना। एक्सेलरेशन क्या डिटरमाइन करता है कि वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है, चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम। चेंज इन वेलोसिटी ऑन टाइम। अब अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं आता, सपोज वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग, ना तो आप उसकी स्पीड को चेंज कर रहे हो ना डायरेक्शन को चेंज कर रहे हो। वही एग्जांपल, व्हीकल चल रहा है 18 किलोमीटर पर आवर उसी डायरेक्शन में, ना तो आप मैग्नीट्यूड बढ़ा रहे हो ना तो स्पीड बढ़ा रहे हो, 18 से 19 नहीं कर रहे, 17 नहीं कर रहे, ना डायरेक्शन चेंज कर रहे हो। तो वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग बिकॉज़ वी आर neither changing the speed part nor the direction. So the vehicle is moving in a constant velocity. और जब कोई चीज के लिए कांस्टेंट है, फिक्स्ड है, तो उसमें चेंज कितना आएगा? यस, जीरो। देयर विल बी नो एक्सेलरेशन। इट मींस व्हेन द वेलोसिटी इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन इज जीरो। बिकॉज़ एक्सेलरेशन तो डिटरमाइन करता है कि वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है, हाउ रैपिडली वेलोसिटी इज चेंजिंग, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अब एक्सेलरेशन टू टाइप्स का होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और यूनिफॉर्म होता है हिंदी में कहेंगे एक समान। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है और एक समान हो रही है, इक्वली चेंज हो रही है, तो एन एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड विल बी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एग्जांपल लेते हैं, आपके पास वही व्हीकल है, इसकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड। इनिशियली जब आपने ऑब्जर्व किया इसको, इसकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड के बाद, आफ्टर 1 सेकंड, velocity becomes 10 meter per second. T equal to 0, T equal to 1. T equal to 2 पर velocity 15। अब देखिए चेंज निकालिए, 10 minus 5, 5 कितने टाइम में? 1 minus 0, 1, 1 सेकंड में 5 चेंज हुआ। 15 minus 10, 5, 2 minus 1, 1, अगेन 1 सेकंड में 5 चेंज हुआ। तो velocity is changing equally in equal intervals of time. Then acceleration produced is called uniform acceleration. And if velocity is changing unequally in equal intervals of time, then acceleration produced is called non-uniform acceleration. Thank you so much, children. In the next lecture, we will start with the kinematics.